बोलो। मैं बाहर आया हूँ इसलिए मैं अभी क्लास से अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा। ओके मैम। ठीक है, मेरे पास मैम की बात का रिमूव कर रहा है। मैम मैंने सबको अटेंडी बना दिया है। बेटा बुक नहीं है तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? मैम कौन सा पेज? मैम पेज नंबर। मैम मत करो, बीच में एक जने को बोलने तो दो। मैम मेरे पास सारी बुक्स है, मैम ने मेरे को 2-3 बुक्स दी नहीं। तो बेटा मांगो जाके, अब वो घर पे लाके तो देंगे नहीं ना आपको, आपको वहां से लेनी पड़ेगी। मैम मैं अगले सैटरडे को बोला था मैम ने बोला आई भी नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है चलो, ये यहाँ से स्टार्ट करो। इक्वल राइट टू वोट, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6, राइट टू इक्वल राइट टू वोट। विथल रीड करना स्टार्ट करो। मैम आज मैं पढ़ूं। किसको पढ़ना है? मनन को। ठीक है मनन, आप स्टार्ट करो बेटा। मैम कहाँ से स्टार्ट करना है? शुरू यहाँ से। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, इक्वल राइट टू वोट। मैम the story about being with Kanta standing in line to cast her vote, look again at the people who are वायरस नहीं, वेरियस पीपल who are standing in line with her Kanta recognize her emperor Ashok Jain and Choti छोटे लाल नेबर, Chote Lal, her neighbor in a de- 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 demo- democratic country. like all Indian all adulation irrespective of what Irrespective irrespective of what region they belonged to, how much addition ed, education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote vote. vote. This, as you have already read in the class sixth book, is called Unreal Universal Adult Franchise. Adult Adult franchising. franchise and is an is intel
essential except of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country is irre- irres- ir- ir- एक सेकेंड कहाँ पढ़ रहे हो आप? Irrespective of their wealth. मैम बुक कौन सी निकालनी है, आप फोटो बताओ ना। सिविक्स की बुक नहीं है आपके पास? मैम मेरे को पता नहीं है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लिखा हुआ है उसके ऊपर, देखो। यस मैम। कौन सी मैम? ये वाली? ये वाली? हाँ ये वाली हिमांशी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड। one vote Kanta is accepted to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. But as her day goes on, Kanta becomes less certain and about what this equality really means. What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives is in a slum and has एक सेकेंड कौन सी लाइन बोली अभी आपने? मैम ये नीचे वाला पार्ट है ना, व्हाट इज इट, हाँ, उसकी थर्ड her daughter, she lives in a slum and she cannot take the day off from the work because she needs to borrow money from her employers to her child to the doctor. Her job as a domestic tries her out, and finally she ends her day by standing in a long hospital line. This line in front government hospital is unlike one in the most because most of the people standing in 8 are आगे क्या लिखा हुआ है? Poor. चलो विठल, अब यहाँ से अब ये इक्वल राइट टू वोट और पेज नंबर 7 पे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, ये मैं साथ में एक्सप्लेन करूंगी। विठल ये रीड करो, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote but was daily living and working conditions are far from equal apart for being poor. People in India expensive inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories.
given below. Each of these is based on real incidents in people's lives, beliefs, and reflect the different kinds of inequalities that exist in India. पढ़ो आगे पढ़ो. One of the more common. One of the more common forms of equality in India is the caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned for experience very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at this matrimonies. So for uh, leading English newspaper, and you will see how important the issue of caste content continues to be in the minds of highly educated urban Indians. Now let's us read a Educated story. urban Indian. पढ़ो आगे पढ़ो. Now let's us Educated read है वो. Now let us read a story about the expensive of a Dalit सब जने कैमरा ऑन child करो अपना. attending school. You have already read about Dalits in the class 6th book. Dalit infants that the so-called lower caste used to address things are Dalit mean broken, and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be closely discriminated against. Om Prakash Valmiki, 1950 to 2013, in a famous Dalit writer in the autobiography Jotan, he writes, I had to sit away from the others in the class. The that who won the day won the floor. The water run out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would never to sit way behind everybody, never the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class for the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes the playground was was well larger than my small rescue pulled handle, and in cleaning it my back began to itch. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying, and I have a sleeping headmaster who was sitting in his room and watching me. I was not allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the door and the window of the school room to the eyes of the teacher पोछे में and लगा दो. Sorry पढ़ो पढ़ो. say this September, Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sleeping. He comforted the teacher, and they walking away from the holding Om Prakash and said loudly for all them to hear. You are a Om teacher. Prakash Valmiki, 1950 to 2013, is a famous Dalit writer. मैम वो पढ़ His लिया in his
तो फिर अभी इसमें क्या ओम प्रकाश, अच्छा ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है पढ़ो। Om Prakash and he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. After in this second story is based on an accident that took place in one of India's large city and the common practice in most part of the country. It is a story and Mr. and Mrs. Sri who were looking to rent and an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the answers liked it very much and dedicated to take it. However, when the handly handlady found out their names, she made a issue about how she could not rent the house to someone who ate meat because the the building did not have any non-vegetarian restaurants. What the Enris and the dealer were surprised to hear this because they could smell fish big cooked in the neighbor's neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartment. Finally, the property dealer and their and the third apartment. Finally, the property dealer told them they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The answer is why declared to do this and dedicated to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. Who have understood by now that the taste we are born into the religious we practice the religious we practice the class background comes from whether are male or female. These are often the things that determine how why some people are dressed unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansharis and making credit unequally on the basis of difference of taste the religion. When persons are treated unequally, ओके their ओके, वेट। इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे कांता की स्टोरी दी हुई है जो मतलब लाइन में खड़ी होती है और फिर उसको वोट करने का कहते हैं ना कि मौका मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि इक्वल राइट टू वोट से इनका क्या मतलब है कि एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक एसेंशियल पार्ट है सारी डेमोक्रेसीज का। ठीक है, ये आइडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस चीज पे बेस्ड है
कि इक्वालिटी ही नहीं होनी चाहिए स्टेट्स के बीच में, सारे अडल्ट्स के बीच में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि उनकी वेल्थ क्या है, वो कितने अमीर है, वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके पास राइट टू वोट होना चाहिए हर किसी को। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो हर एक पर्सन को अपने पास एक अपना राइट होता है उसके पास, ठीक है, कि वो ये पर्टिकुलर चीजें एक कंट्री में रहकर परफॉर्म कर सकता है। वैसे ही हर एक सिटीजन के पास ये सब कौन इंश्योर करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। और कांता एक स्लम में रहती थी। स्लम स्लम में रहने का मतलब है कि वो कभी उसने वैसी रिस्पेक्ट और ये सब कुछ उसने नहीं देखा था, ठीक है। उसका जॉब क्या था कि वो मतलब डोमेस्ट मतलब आसपास के घरों में काम करती थी और मनी बोरो करती थी अपने एम्प्लॉयर से, ताकि अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जा सके, ठीक है। और वो अपना डे कैसे खत्म करती थी, बाय स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जो ऐसी कास्ट होती है जिनको नहीं माना जाता है ज्यादा, उनको अनटचेबल्स माना जाता है, ये सारी चीजें गलत होती है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पर्सन को उनके कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मैं हिंदू, वो मुस्लिम, मैं इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम दोनों की नेशनलिटी क्या है, इंडियन। आया समझ में? तो बाय डिफॉल्ट कोर्ट की नजरों में, लॉ की नजरों में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में हम इंडियंस हैं, हम हिंदू और मुस्लिम नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट नहीं बनाई है, कास्ट हम ऑर्डिनरी पीपल ने बनाई है। आया समझ में? कास्ट ये हम ऑर्डिनरी पीपल ने बनाई है, कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाई है। इस चीज में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कास्ट बनाई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए तो माइनॉरिटीज को इतनी सारी चीजें दी है और क्या बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी वालों को नहीं दिया है। बेटा ऐसा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को सब देख के चलना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट और बहुत डाइवर्स है, ठीक है। बहुत सारे कल्चर्स फॉलो होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो होते हैं। अब आंख में पट्टी बांध के तो नहीं बैठ सकते ना कि मतलब हमारी कंट्री में इतना सब कुछ है और हम लोग क्या, हम लोग उसके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बना रहे। अगर उसके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे ना तो क्या होगा कि हमारी कंट्री में झगड़ा होगा जात पात को लेकर। आया समझ में? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में वो चीज आई है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट नहीं बनाई है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कास्ट हम ऑर्डिनरी पीपल ने बनाई है, हम ऑर्डिनरी पीपल ने एक दूसरे के बीच एक दीवार खींच दी है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो गलत मानी जाती, जबकि सी एज अ पर्सन इट इज नेवर रॉन्ग, एज अ पर्सन इट इज नेवर रॉन्ग। आया समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो ये होता है इक्वल राइट टू वोट। अब इसके अलावा भी अलग अलग चीजें आती है, ठीक है। सी अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर और अपार्ट फ्रॉम राइट टू वोट, ठीक है, डेली लिविंग जो वर्किंग कंडीशंस होती है बहुत फार फ्रॉम है, मतलब जैसे अपने यहाँ पे इक्वल बहुत कम चीजें हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ पुरानी सोच अभी तक यहाँ पे चलाई जाती है, ठीक है। पूर्वज अभी भी यही सोचते, कुछ हमारे जो कहते हैं ना कि पुराने जमाने के लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि फीमेल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, फीमेल्स को आगे काम नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच वैसी है। आया समझ में? बट धीरे धीरे एज इंडिया इज गोइंग, इंडिया नहीं, हम जनरेशन कह सकते हैं, एज जनरेशन इज गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, इससे क्या पता चलता है, जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं। कैसे चेंजेस आ रहे हैं? आज मेल्स एंड फीमेल्स दे बोथ वर्क ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आया समझ में? और दोनों में डिफरेंशिएट होता है तो किस चीज का होता है? मेल्स और फीमेल्स का नहीं होता। दोनों में डिफरेंशिएट होता है कि वो दोनों, उन दोनों में से सबसे ज्यादा काबिल कौन है। आया समझ में? उन दोनों में सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास है। आया समझ में? तो ये इनइक्वालिटी का ही एक तरीका है, मगर ऐसे देखो तो एक तरीके से इंडिया जिस स्टेप से लाइक इट इज मूविंग फॉरवर्ड, धीरे धीरे ये इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है इक्वालिटी का कास्ट सिस्टम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत सारे छोटे बच्चे वेरी यंग एज से इस सारी चीजों को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखोगे, मतलब मैट्रिमोनियल तो आपको मतलब ये कुछ ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे मतलब जैसे यू कैन फाइंड अ परफेक्ट मैच। मैट्रिमोनियल साइट्स वो होती है जहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन जाके यू कैन सर्च फॉर योर लाइफ पार्टनर जिससे आप शादी करना चाहते हो, उससे हम मैट्रिमोनियल साइट्स बोलते हैं। उसको हटा के ले, जानकी उसको हटा के ले, पीछे है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मैट्रिमोनियल साइट। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल साइट पर भी आप देखोगे ना, और न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि एक पर्टिकुलर इसी कास्ट का बंदा या इसी कास्ट की बंदी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, उनको चाहिए अपनी कास्ट का, उनको अगर अदर कास्ट मिल जाएगा तो वो करेंगे नहीं। तो कास्ट सिस्टम ने एक्चुअली काफी सारी चीजों को, जैसे मैंने आपको बोला था, काफी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, और माना सबका कास्ट सिस्टम, सबको अपनी अपनी कास्ट प्यारी है, ठीक है, नॉट क्वेश्चनिंग एवरीवन, बट इट इज लाइक what it is like you need to respect every caste, every religion which comes across you। जो भी आपके इर्द गिर्द जितने भी कास्ट, जितने भी रिलीजन है, सबकी क्या करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, विद दिस, इसके बाद ओम प्रकाश की और वो है, ये आप अपने आप पढ़, ये आप अपने आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंसिडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ज्यादा कुछ भी नहीं है। कल हम स्टार्ट करेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी से। ठीक है, और कल मैं इस चैप्टर को रैप अप करना चाहती हूँ, पूरा एकदम खत्म करना चाहती हूँ। तो आई होप कल हम इस चैप्टर को खत्म कर लें। ओके, गुड डे एवरीवन। बाय मैम।